Good morning, dear students. How are you? I hope you all fit and fine. This is your physics class. But before starting the work, let's take pledge. I, Ramandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now let's start with physics. So in the previous video, we start with the chapter first, that is matter. In that video we will discuss up to the kinetic molecular theory of matter, but today we will continue with topics, that is states of matter. So there are four major states of matter, that is solid, liquid, gas and plasma. You already know about the three states of matter, solid, liquid and gases. The new one is plasma. So what is solid? First of all, what is solid? In solids, atoms are tightly packed together and matter is composed. Such matter are known as solids. Atoms क्या उसमें tightly packed होते हैं और उसमें matter contained होती है, तो इस type of matter को हम क्या बोलेंगे? Solid. You can see in the diagram. There is a diagram for the molecules in solids. These molecules are tightly packed. ये tightly packed है, एक दूसरे के साथ tightly packed है. The shape of solid remains same at room temperature. तो रूम टेम्परेचर पे ये इसकी जो शेप है वो सेम रहती है. तो सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड. देयर इज़ अ स्मॉल स्पेस बिटवीन द एटम. डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड मैटर इज डिपेंडेंट ऑन हाउ tightly atoms are packed. That is, density of wood and gold are different as there is a more space between the atom in case of wood in comparison to gold. इसमें क्या कह रहे हैं कि जो सॉलिड्स हैं वो उसमें जो एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनमें स्मॉल स्पेसेस होती है. यू कैन सी हियर, इनमें देखो स्पेस बहुत कम है. सो डेंसिटी ऑफ अ मैटर किस पे डिपेंड करती है कि उसके जो एटम्स हैं वो कैसे पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है, लूजली पैक्ड है या कैसे भी है. जो अगर टाइटली पैक्ड है तो वो सॉलिड होगा, अगर थोड़े लूजली हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड तो वो लिक्विड फॉर्म में होंगे. अगर बिल्कुल लूजली हैं, देयर इज़ अ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, दैट मीन्स दे आर गैसेज. सो एग्जाम्पल हमें गिवन है, डेंसिटी ऑफ वुड एंड गोल्ड आर डिफरेंट. डेंसिटी वुड और गोल्ड की डिफरेंट होती है. क्यों होती है? क्योंकि इन केस ऑफ अ वुड उसमें जो स्पेसिस है, जो मॉलिकुलर स्पेसिस है वो थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड. सो डेंसिटी ऑफ अ गोल्ड इज़ मोर देन दैट ऑफ वुड. सो नेक्स्ट अबाउट द लिक्विड. लिक्विड है, लिक्विड में थोड़ी स्पेसिस क्या है, थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू solids. Liquid do not hold their shape at room temperature. Atoms inside the liquid have more space in comparison to solid and they move slightly all the times. Liquid doesn't hold the shape and it takes the shape of vessel or container in which it kept. It changes the shape with the change in vessel. Gravity affects liquid also. जो liquid है उनकी कोई definite shape नहीं होती, ठीक है. रूम टेम्परेचर पे एटम्स हैं जो लिक्विड के वो क्या होंगे, वो थोड़ी ज़्यादा स्पेस, उनमें थोड़ी ज़्यादा स्पेस होगी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड. जो लिक्विड है उसकी कोई डेफिनेट शेप तो नहीं होती, जो जिस वेसल में हम इसे रखेंगे या कंटेनर में इसे हम रखेंगे उसकी ये शेप है एक्वायर कर लेंगे. सो ग्रेविटी है वो अफेक्ट करती है लिक्विड को. दिस इज़ द मेन पॉइंट. व्हेन यू पोर वाटर इन अ ग्लास इट डजंट रिमेन ऑन द टॉप एंड इट गोज इनसाइड द ग्लास. जो जब हम एक ग्लास में वाटर को पोर करते हैं, ठीक है, वाटर को डालते हैं तो वो उसके अपर पार्ट में नहीं रहता, टॉप में नहीं रहता, वो इमीडिएटली वो नीचे चला जाता है इनसाइड द ग्लास. हैंस इफ द ग्लास इज हाफ फिल्ड देन द टॉप हाफ पार्ट डजंट हैव वाटर. अगर ग्लास हाफ फिल्ड है तो उसका टॉप मोस्ट पार्ट में तो वाटर नहीं होगा. इवन इट कैन नॉट बी गिवन टू द अनदर पर्सन विदाउट यूजिंग वेसल. और किसी अदर पर्सन को भी हम ऐसे ही ट्रांसफ़र नहीं करेंगे. सो दैट मीन्स
वाटर पे ग्रेविटी का इफेक्ट होता है। ग्रेविटी क्या करती है, हर चीज़ को नीचे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सो सेम है कि लिक्विड पे भी जो ग्रेविटी है वो अपना इफेक्ट डालती है। सो नेक्स्ट अबाउट द गैसेस, यू कैन सी इन द डायग्राम, गैसेस में थोड़ी ज़्यादा स्पेसेस होगी एज कम्पेयर टू लिक्विड। सॉलिड में टाइटली पैक्ड है, लिक्विड में थोड़े लूजली पैक्ड है, और गैसेस में तो वो कंप्लीटली और या फिर उनमें मैक्सिमम स्पेस होगी। सो दैट्स वाई देयर इज अ लीस्ट और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद गैसेस। गैसेस डू नॉट स्टे इन वन प्लेस, एक डेफिनेट प्लेस पे तो ये नहीं रहेंगी। क्यों? दे ऑलवेज कैप्ट ऑन मूविंग, ये ऑलवेज इसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं। द स्पेस बिटवीन द एटम्स इन केस ऑफ अ गैस इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। जो इसके पार्टिकल्स की जो स्पेस है, एटम की स्पेस है, वो सॉलिड एंड लिक्विड से बहुत ज़्यादा होती है। हैंस दे कैन मूव अराउंड ईजिली। जब वो दूर दूर होंगे उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, वीक होगी, तो डेफिनेटली वो ईजिली मूव करेंगे। देयर आर बंच ऑफ गैसेज इन आर सराउंडिंग दैट वी इवन डोंट नो मैनी ऑफ दैम। हमारी जो सराउंडिंग में बहुत सारी गैसेज प्रेजेंट है, जिनमें से कईयों का हमें तो पता भी नहीं है। और गैसेज ऑल्सो टेक द शेप ऑफ कंटेनर लाइक लिक्विड एंड इवन दे कैन बी कंप्रेस्ड टू अ स्मॉलर स्पेसेस। गैसेज है वो कंटेनर की शेप भी एक्वायर कर लेती हैं, जस्ट लाइक जिस भी कंटेनर में करेंगे उसको कम्प्लीटली होली फिल्ड कर देंगे। तो इसकी ये प्रॉपर्टी लिक्विड के जैसी है, और हम गैसेस को कंप्रेस करके इसको लिक्विड फॉर्म में और कम स्पेस में इसको कवर कर सकते हैं। गैसेस ऑल्सो फिल अप द स्पेस एज इन केस ऑफ बैलून, ये भी स्पेस कवर करती है जस्ट लाइक इन केस ऑफ बैलून हम देख सकते हैं। When air is blown, the air fills up the space inside the balloon. Gravity doesn't affect gases like solid and liquid. हमने बैलून में देखा जब हम उसमें एयर पुट करते हैं तो एयर भी कोई ना कोई स्पेस एक्वायर करती है दी बैलून। सो दैट मीन्स कि जो गैस है वो कोई ना कोई स्पेस एक्वायर करती है। सो इस पे जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो नहीं होता जैसे सॉलिड और लिक्विड में ग्रेविटी अपना इफेक्ट शो करती है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो गैसेस में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट अबाउट द प्लाज्मा, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा क्या है? व्हेन द एक्स्ट्रा एनर्जी इज गिवन टू द गैसेस थ्रू हीटिंग और इलेक्ट्रिसिटी, द पार्टिकल्स ऑफ गैस स्प्लिट इन स्मॉलर पीसेस, दे आर वेरी हॉट एंड ग्लो, दिस इज नोन एज प्लाज्मा। जब हम गैस को एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, चाहे उसे हीट करके प्रोवाइड करें, चाहे उसे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू प्रोवाइड करें, तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो स्मॉलर पीसेस में स्प्लिट हो जाते हैं, और वो जो उसके जो स्प्लिटिंग पार्ट्स होंगे वो हॉट एंड ग्लोइंग होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। सो दिस इज अबाउट द प्लाज्मा। नेक्स्ट अबाउट द एनर्जी कंटेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। के एनर्जी कैसी होगी? इन सॉलिड द पार्टिकल ऑफ सॉलिड्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। जो सॉलिड्स में है पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन दी पार्टिकल्स सो दैट दे आर अनेबल टू मूव फ्रीली एंड कैन ओनली वाइब्रेट। जो इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो वो एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, फ्रीली नहीं मूव करते, ये सिर्फ वाइब्रेट करेंगे। सो इनका एक डेफिनेट शेप होता है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, क्योंकि ये मेनली एक फिक्स पोजीशन पे रहते हैं। सो द शेप ऑफ सॉलिड डजेंट चेंज व्हेन द फोर्स इज एक्सर्टेड। जो सॉलिड की शेप है वो भी चेंज नहीं होती जब उस पर हम कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। इसको हम सॉलिड को हम ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं और इनको कट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अबाउट द लिक्विड। लिक्विड है, इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द मॉलिक्यूल्स possesses enough energy to move around and hence they have a mobile structure। इसके पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी होती है कि ये ईज़िली मूव कर सकते हैं, और इसीलिए इनका जो स्ट्रक्चर है वो मोबाइल मीन्स मूविंग, जो इसके पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, उनके पास इतनी एनर्जी होती है। नेक्स्ट अबाउट द गैसेज। गैसेज हैं, इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो वेरी स्मॉल होती है, वीक होती हैं या फिर अप्रॉक्सीमेट जीरो ही होती हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस अमंग द पार्टिकल्स ऑफ द गैस। सो द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मच स्मॉलर दैन द डिस्टेंस बिटवीन द नेबरिंग मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल्स का साइज़ है वो उनके दो मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस से भी क्या है? छोटा होता है। सो नेक्स्ट अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज।
सॉलिड है उनका जो डेफिनेट मास होता है, लिक्विड का भी डेफिनेट मास होता है और गैसेस का भी डेफिनेट मास होता है। सॉलिड की फिक्स शेप होती है, लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती, जिस कंटेनर में पुट करेंगे उसकी शेप एक्वायर कर लेंगे। नेक्स्ट अबाउट द गैस, इसकी भी फिक्स शेप नहीं होती, ये भी होली कवर करते हैं जिस भी कंटेनर में इसे पुट करेंगे। नेक्स्ट अबाउट द वॉल्यूम, सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लिक्विड का भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और गैसेस का फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, ये उसी कंटेनर का वॉल्यूम एक्वायर करते हैं जिसमें हम इसे पुट करते हैं। सॉलिड डजंट फ्लो, लिक्विड फ्लो करते हैं फ्रॉम हाई टू लो लेवल, गैसेज है फ्लो करते हैं इन ऑल द अवेलेबल डायरेक्शन, जो भी इन्हें डायरेक्शन अवेलेबल होगी उसमें फ्लो करते हैं। इन सॉलिड इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज़ वेरी लो, सॉलिड में जो प्रेशर है वो उसका जो इफेक्ट है वो बहुत कम होगा। इन केस ऑफ अ लिक्विड इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज समवट हायर देन दैट इन केस ऑफ सॉलिड, सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा इस पर इफेक्ट शो करेगा ऑन द लिक्विड, और जो गैसेज है उस पर तो प्रेशर का हाईली इफेक्ट होता है। सो नेक्स्ट अबाउट द एक्सपेंशन, जो सॉलिड है लेस एक्सपेंशन होगी इनकी हीटिंग के, और जब लिक्विड को एक हीटिंग प्रोवाइड करेंगे, हम हीटिंग देंगे या फिर हीट करेंगे तो ये एक्सपेंड होते हैं देन सॉलिड, और जो गैसेस होती हैं वो तो हाईली एक्सपेंड हो जाती हैं विद हीटिंग। जो सॉलिड है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैं क्लोज टुगेदर, वो टाइटली स्ट्रक्चर में होते हैं, फिक्स्ड उनका स्ट्रक्चर होता है। जो लिक्विड है मॉलिक्यूल्स हैं वो लेस क्लोजर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, और मॉलिक्यूल्स में गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर होते हैं। इन सॉलिड स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होती हैं, लिक्विड में थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, और जो गैसेस हैं इनमें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल ही होती हैं। इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है सॉलिड में बहुत कम होती हैं, इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है वो थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, और गैसेस के पार्टिकल तो बहुत दूर दूर होते हैं तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होंगी। मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड रेगुलर ऑर्डर होगा, इन लिक्विड कंप्लीट रेगुलर ऑर्डर नहीं होगा, और इसमें तो गैसेस में तो टोटली डिसऑर्डर होगा मॉलिक्यूल्स का, उनकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होगी। नेक्स्ट अबाउट द पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स, देयरफॉर दे शो ओनली वाइब्रेटरी मोशन, जो मॉलिक्यूल्स की पोजीशन है वो फिक्स होती है और उनका वाइब्रेटरी मोशन, इसीलिए सिर्फ उनका वाइब्रेटरी मोशन होता है, वो मूव नहीं करते। एग्जाम्पल क्या है सॉलिड की, वुड, स्टोन, पेपर एक्सेट्रा, एक्सेप्ट मरकरी। क्यों लिखा है कि मरकरी भी एक मेटल है, मेटल को मेनली हम सॉलिड कंसीडर करते हैं, लेकिन एक मरकरी ही ऐसी मेटल है जो सॉलिड नहीं है, दिस एग्जिस्ट इन अ लिक्विड फॉर्म। नेक्स्ट अबाउट द लिक्विड, मॉलिक्यूल स्लिप पास्ट ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ स्लिप करते हैं और मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। सो एग्जाम्पल फॉर द लिक्विड, मिल्क, वाटर, हनी, मरकरी ऑयल एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट अबाउट द gases, molecules move freely in straight line in all available directions, so example for this gases, air, oxygen, hydrogen, oil etc, all this. So next about the change of state in matter using kinetic energy, इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल एक डायग्राम के थ्रू ऑल समरी गिवन है। सॉलिड है, सॉलिड को जब हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ये मेल्ट होगा, मेल्ट होके किस स्टेट में कन्वर्ट होगा, टू दी लिक्विड फॉर्म। जब हम लिक्विड फॉर्म को फिर से हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, इसको हीटिंग प्रोवाइड करेंगे, तो ये क्या हो गया, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, एवेपोरेट हो जाएंगे। दिस इज अबाउट दी, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो इसको, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, मेल्टिंग, और जब लिक्विड गैस में चेंज होता है तो इसको क्या बोलेंगे, एवेपोरेशन। सो जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है इसको मेल्टिंग बोलते हैं, जब सॉलिड डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो तो इसे हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। इन तीनों प्रोसेस में विच आर रिप्रेजेंटेड बाय दी रेड एरो के साथ रिप्रेजेंटेड है, उनमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मीन्स जब ये रिएक्शन हो रही होगी या फिर ये चेंज अकर हो रहा है तो हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। इन दिस, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए भी हमें हीट प्रोवाइड करनी होगी, तभी ये मेल्ट होगा सॉलिड इन अ लिक्विड फॉर्म। जब हमें लिक्विड को गैस में चेंज करना तभी हमें हीट प्रोवाइड करनी, मतलब टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा, तभी लिक्विड गैस में चेंज होता है।
जब सॉलिड को भी डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करना होता है तो तब भी हमें जो हीट है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है. सो दिस इज़ अबाउट द हीट एब्जॉर्बिंग प्रोसेसेस जस्ट लाइक मेल्टिंग, एवेपोरेशन एंड सब्लिमेशन. नेक्स्ट क्या है, जब लिक्विड को हम कूल करेंगे तो ये सॉलिडिफाई होगा. यू कैन सी, जब हम वाटर है, वाटर को हम क्या है, ठीक है, सॉलिडिफाई करना होता है, उससे आइस में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग. जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस. और जब हम गैसेस को लिक्विड में चेंज करना, लिक्विड को तो गैस में चेंज किया बाय द एवेपोरेशन, अब गैसेस को लिक्विड में भी तो चेंज कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. कंडेंसेशन में क्या करेंगे, जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, टू द लिक्विड फॉर्म. एंड गैस को हम डायरेक्टली सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द डेपोजिशन प्रोसेस. सो दिस इज ऑल अबाउट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द डायग्राम. So we already learned about this in your online interaction class. There is video related to that class. If you have some doubts regarding this topic, you can clear by seeing this video. So there are some questions regarding this, just like explain kinetic molecular theory of matter, 4 states of matter, explain them, differentiate solid, liquid and gases physically according to atomic arrangement. These all questions related to this topic, try to do yourself. We also provide the written assignment for this. Your first, second assignment already discussed in your online interaction. Your third assignment, written assignment, I will send to you. So hope you get all these points. With this your first chapter is completed. Thanks students, have a nice day.